Hello students, in today's lecture number 2 on gravitation for class 9, we shall discuss the dependence of gravitational force, number 1 on mass, number 2 on distance, and then we shall discuss the importance of the universal law of gravitation, and also we shall have discussion on applications of law of gravitation and then free fall. So first, before starting the dependence of gravitational force on various parameters, we try to recap what we discussed in lecture 1. In lecture 1, we discussed force and laws of motion and motion. इन दो चैप्टर्स में हमने क्या डिस्कस किया इसके बारे में जाना. Then we discussed one activity when we throw a ball in upward direction. Its velocity decreases continuously, and at the point of maximum height its velocity becomes zero, and again it falls back to the surface of earth, or we can say it falls down, and whenever it is falling down its velocity will increase, and it will strike the ground with maximum velocity. So, in upward motion and downward motion of a ball, we can have the variation of velocities. We discussed the activity of sun and its planets. All planets are revolving around the sun. We discussed the massive object. Object which is having some mass is known as massive object. We also discussed the example of apple tree for the gravitational force. And we discussed this activity also, in which one ball is attached with a rope whose another end is in the hand of a person, and when this person applies a force, then this ball moves in a circular path, and the required centripetal force for the circular motion for this ball is provided with by gravitational force. And the condition gravitational force is equal to centripetal force tells us that the ball will move in a circular path. As the condition Fg is equal to Fc get disturbed, then ball will not follow circular path. Then we discussed the universal law of gravitation, which was given by Sir Isaac Newton. It is nothing but the force of gravitation, which may be of only attractive nature, and it is directly proportional to the multiplication of the masses of two given objects and inversely proportional to the square of distance between them. When you increase masses, then force will increase, and when you decrease distance between two objects, then force will increase, and if you increase the distance between two objects, force will decrease. You may write this expression like this: G m1 m2 upon d square, where G is constant of proportionality known as gravitational constant or universal constant. We call it as universal constant because its value remains same everywhere in the universe, and its numerical value is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, which was calculated by Sir Henry Cavendish in 1798. And after this we discussed the unit of capital G, that is gravitational constant. It is Newton meter square per kilogram square. Then we defined the universal gravitational constant, which is nothing but the force of gravitation existing between two unit masses separated by unit distance. Means if two blocks of masses 1 kilogram and 1 kilogram are separated by 1 meter distance, then the force of gravitation between these two objects is nothing but equal to gravitational constant. Means 6.67 कितना force हो जाएगा? 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton. This much amount of force will be there between two blocks of masses 1 kilogram and separated by distance 1 meter. ऐसे दो मासेज जिनका वैल्यू 1 किलोग्राम यानी यूनिट वैल्यू है, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन होगा, जो कि बहुत ही कम फोर्स है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ फोर्स है.
इसलिए इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है क्योंकि उनके मासेज काफ़ी कम है। तो अब देखिए डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास। मास पर क्या डिपेंडेंस होता है? सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसे आप अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हो या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू क्या होता है? Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. Now, if you change the mass of any one object, suppose uh, the mass of first object is m1, right? This is the first object, and the mass of second object is m2. And if you double the mass of second object, if you make the mass of second object double of its initial value, यदि आप जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके मास को डबल कर देते हैं, then what will happen? If I consider that the mass of first object is small m, mass of first object is small m, m1 is equal to m, and the mass of second object is twice of the mass of first object. Okay, and these two objects are separated by a distance small d. Small d distance पर ये रखे हुए हैं. Then what about gravitational force acting between these two objects? Therefore, force of gravitation would be equal to G m1 की जगह रखें आप स्मॉल m, और m2 इन प्लेस ऑफ m2 यू राइट 2m, राइट, अपॉन डी स्क्वायर एंड इट वुड बी g 2gm स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, 2gm स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. दिस इज द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन यू चेंज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी एक ऑब्जेक्ट का मास आप पहले ऑब्जेक्ट मास का डबल कर दिए. तो देखिए जब स्टार्टिंग में आपने क्या किया? m1 को m लिया था और m2 को m लिया था, m2 को भी m लिया था, ठीक है, m2 को भी क्या लिया था? m लिया था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? स्मॉल d था. तो इस समय ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा इस केस में वो F इज इक्वल टू जी. स्मॉल m1 क्या है? m है. स्मॉल m2 क्या है? m है. दोनों के मासेज बराबर हैं, तो m इंटू एम क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जब सेकंड ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए, ये डबल किया सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, तो उस केस में देखिए एफ डैश इतना हो गया, और आप देख रहे हैं कि ये जो g इंटू एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है ये किसके बराबर है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि इनिशियल था. इनिशियली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच जब इन दोनों के मासेज बराबर थे तो कितना था? gm स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. अब आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा? इनिशियल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का डबल हो जाएगा. तो मास डबल करने से, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करने से फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. फोर्स भी डबल हो गया. लेकिन यदि मास को यदि आप कहते हैं ये तो केस 1 है, ये तो केस 1 है, ठीक है. अब केस 2 में मैं क्या करता हूँ? इफ केस 2 में मैं क्या करता हूँ? m1 को स्मॉल m लेता हूँ, और जो m2 है जो कि स्मॉल d डिस्टेंस पर रखा हुआ है, स्मॉल d डिस्टेंस पर रखा हुआ है ये m2, यदि इसके मास को मैं डबल करने के बजाय, यदि मास को मैं डबल करने के बजाय क्या कर दूं? यदि मास देखिए क्या कर देते हैं, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया था, एक का ऐसे ही रखा था. यदि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेज को डबल कर दें, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेज को डबल कर दें, एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करने के बजाय यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दिया जाए, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो एफ डैश होगा इनके बीच में जी m1 का मतलब 2m इंटू m2 फॉर्मूले के अंदर रख रहे हैं बेटा हम, अपॉन डी स्क्वायर, यही होगा. और ये कितना आ गया? 4, 2 इंटू 2 4, और क्या बचा? जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये एफ डैश आया, राइट. और यहाँ ये जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्या है? ये इनिशियल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है. जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम था तो उस समय ये ग्रेविटेशनल फोर्स था,
जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दिया तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 4 टाइम्स हो गया। यदि मास देखिए एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया था तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डबल हो गया, ठीक है। और यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल किया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल किया यानी 4 टाइम्स हो गया मास, ठीक है। तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है? यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि मास जो है इंक्रीज होता है वेन एवर द मास इंक्रीजेज। जब भी मास इंक्रीज होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंक्लूजन यदि मैं इसका लिखूं, कंक्लूजन मास का कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन यह है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly proportional to massage. Force of gravitation is directly proportional to massage of two given objects, ठीक है। जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज, इसका मतलब आप कह सकते हैं दैट इज इफ मासेज इंक्रीजेज, ठीक है। यदि मास बढ़ेगा, इफ मास इंक्रीजेज देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो, है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी लिख दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो मास बढ़ाने से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। ये यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड हम टॉपिक की बात करते हैं। हम डिस्कस करना चाहेंगे डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन डिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन डिस्टेंस। डिपेंडेंस बात करेंगे, डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस पर क्या डिपेंडेंस है? आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये आप जानते हैं। इसके लिए हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। सपोज दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास स्मॉल m and second object is also having mass small m and the distance between these two objects is small d. Then the force of gravitation between these two objects would be what? G, capital G. m1 means small m, m1 m2 ये फॉर्मूला होता है, हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m1 मतलब m, m2 मतलब इंटू m अपॉन डी स्क्वायर, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई? जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये f की वैल्यू आई जब दो सेम मासेज के ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो इतने के बराबर होगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं। यदि हम डिस्टेंस को क्या कर दें, यदि हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, डबल कर दिया जाए डिस्टेंस को, तो उस केस में क्या होगा? देखिए ये ऑब्जेक्ट था m1 जिसका मास m था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास m2 वो भी m के बराबर था। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को d के बजाय क्या कर दिया जाए? 2d कर दिया जाए, 2d कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा नया, इस केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा g m1 m2 अपॉन डी डैश स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी अब डी डैश क्या है? मतलब यहाँ पर देखिए m1 तो m है और m2 m है और d डैश कितना है? 2d है।
2d होल स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, d डैश की जगह 2d लिखेंगे, तो यहाँ से लिखें तो f डैश इज इक्वल टू g m स्क्वायर हुआ ऊपर और नीचे 4d स्क्वायर हुआ, तो ये क्या आ गया 1/4 g m स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो इनिशियल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी जो नया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा यदि डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 यानी रिड्यूस हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड केस लेते हैं, यदि आप डिस्टेंस को, इफ डिस्टेंस बिटवीन objects is thrice of its, या ऐसे लिख दीजिए, is increased if distance between objects is increased 3 times, यदि डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स करने का मतलब ये m1 था जिसका मास स्मॉल m था, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2, उसको भी हम स्मॉल m मास ले लेते हैं, दोनों का मास बराबर है। लेकिन इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, यदि इसको 3d कर दिया जाए, यानी जो डिस्टेंस है उसको 3 टाइम्स कर दिया गया, तो जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी m1 m2 अपॉन डी डैश स्क्वायर होगा। अब डी डैश आप जानते हो यहाँ क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा 3d, ठीक है। m1 की जगह m हो जाएगा, m2 की जगह भी m हो जाएगा, अपॉन डी डैश की जगह 3d, और ये स्क्वायर है, डी डैश स्क्वायर है तो 3d होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से f डैश इज इक्वल टू जी m स्क्वायर अपॉन 9d स्क्वायर आएगा, और यहाँ से 1/9 को इधर लिख लेता हूँ, जी m स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आप जानते हो इनिशियल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस हो गया, और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, यानी जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, उनके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा, यहाँ से कंक्लूजन लिख लेते हैं इसका, कि जब डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। कंक्लूजन जो ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन यहाँ से क्या ड्रॉ हुआ कि व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड, व्हेन द डिस्टेंस is doubled, when the distance is doubled, the force of gravitation या attraction कुछ भी कह सकते हो, force of gravitation will be reduced 1/4, कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, एंड when the distance is increased, when the distance is increased 3 टाइम्स, ये भी हमने किया था, 3 टाइम्स जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, द फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय, द फोर्स विल बी reduced to कितना 1/9 of the original value of force, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फोर्स का 1/9 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो दो एग्जाम्पल हमने लिए, तो इससे हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द ग्रेविटेशनल force of attraction, gravitational force of attraction between any two objects, या फिर कह सकते हो bodies, between any two objects or bodies varies, कैसे वेरी करता है? इनवर्सली, varies inversely as the square of the distance between of the distance as the square of the distance between them। तो ये इनवर्स रिलेशन की बात यहाँ प्रूव हो जाती है। अब यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें दो लाइट ऑब्जेक्ट के बीच में, तो दो लाइट ऑब्जेक्ट के बीच मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की आपसे बात की थी। देखिए, जब हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन किया था, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल था। लाइट ऑब्जेक्ट थे ये 1 किलोग्राम। लाइट ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम आ रहा था। जब दोनों ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट का मतलब मासेज बहुत कम है। देखिए 1 किलोग्राम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है, ये वीक फोर्स होता है। तो लाइट ऑब्जेक्ट्स के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होता है? वीक होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स between any two light objects का मतलब जिनका मास काफ़ी कम है, इज वेरी वीक। कैसा होता है? वीक होता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, यदि m1 को 1 किलोग्राम ले लें और m2 को 1 किलोग्राम ले लें, ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये m1 है, ये m2 है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट आप जानते ही हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मास किलोग्राम में ही है। ध्यान रखिए जब भी फॉर्मूले में हम कोई वैल्यूज़ रखते हैं तो पहले ये देख लेना है कि सभी सेम यूनिट में हैं या नहीं। ये मीटर है, ये केजी है, सेम यूनिट है, सेम सिस्टम है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन आया, ये फोर्स का यूनिट आया। और ये -11 है, देखिए क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है बेटा। तो ये कैसा फोर्स हुआ? ये वीक फोर्स हुआ। ये कैसा हुआ? वीक फोर्स हुआ, ठीक है। कैसा हुआ? वीक फोर्स। वीक भी नहीं, वेरी वीक कहोगे आप इसको, वेरी वीक फोर्स। तो लाइट ऑब्जेक्ट्स के बीच जो फोर्स लगता है वो बहुत ही वीक होता है। अब यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें फोर्स बिटवीन, जैसे मान लीजिए यदि हम एक एग्जाम्पल लें, यदि m1 को मैं 60 किलोग्राम ले लेता हूँ बेटा, और m2 को मैं 100 किलोग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। m1 और m2 को मैंने ले लिया, और ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। m1 60 किलोग्राम है, m2 100 किलोग्राम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो अब इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो आएगा Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो कैपिटल G की वैल्यू तो ये हो गई -11
ठीक है, और m1 का मतलब 60 इंटू m2 मतलब 100 अपॉन डी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻³ 1 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको मैं लिखूंगा कितना, 10⁻⁻8, तो ये 10 की पावर हो गई, -11 + 3 -8 हो गया। 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 7 जा 42, 2 4 गया, 6 6 जा 36 40 0 4 6 6 जा 36 40.02 इंटू 10⁻02 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये भी एक वीक फोर्स हुआ, ये भी क्या हुआ, एक वीक फोर्स हुआ, पहले से बढ़ गया। देखिए मासेज बढ़ गए तो पहले से फोर्स बढ़ गया है, ठीक है, तो अभी भी मासेज उतने ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक वीक फोर्स होगा, ये भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, वीक फोर्स होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, वीक फोर्स होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स के बीच जो फोर्स होता है, ये जो मैंने नोट आपको बताया है, क्या नोट लिया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू लाइट ऑब्जेक्ट्स इज वेरी वीक। तो इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे। इनका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा, कि वी डू नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स exerted बाय, वी डू नॉट experience we do not experience the force exerted by the force exerted by force exerted by one object on the other, one object ऑन, कहाँ रखा है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कहाँ रखा है वो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन द अदर। दो ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि मासेज अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है मास, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, वीक फोर्स आता है इसलिए, ठीक है। तो ये कंक्लूजन भी आपको समझ में आ गया होगा। वी डू नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द अदर, राइट। ये दो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी वीक आता है, इसलिए वो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम निकालना चाहते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल लेता हूँ, एक नोट करके लिख लें। सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल लेते हैं, if an object of mass for example 50 kilogram is kept on the surface of earth, कहाँ रखा हुआ है, surface of earth पर रखा हुआ है, ठीक है। if an object of mass 50 kilogram is kept on the surface of earth, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में देखिए हमें दे रखा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ जिसका मास आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम फॉर एग्जांपल, ये मास दे रखा है। अब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट
जब कोई, ये अर्थ है मान लीजिए, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है, ठीक है, और इस पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका मास जो है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 50 किलोग्राम, और अर्थ का मास तो 50 किलोग्राम के कंपैरिजन में देखिए 6 इंटू 10⁻24। अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो मास है वो कितना है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो ये मान लीजिए रेडियस है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है। रेडियस ऑफ अर्थ की यदि मैं बात करूं तो ये होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हो आप 64 इंटू 10⁻5, 64 इंटू 10⁻5 मीटर, इस तरीके से लिख सकते हो। किलोमीटर में 10⁻3 होता है, ये 2 और आगे, तो 10⁻5 मीटर हो गया। ये रेडियस ऑफ अर्थ, इनके बीच का, इस अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यही लिया जा सकता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी साइज तो इस अर्थ की तुलना में बहुत छोटी है, तो इसकी रेडियस को तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ की रेडियस के बराबर होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा F इज इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ, ME लिख देता हूँ मास ऑफ अर्थ को, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। और यहाँ से F इज इक्वल टू जी का मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 50 किलोग्राम, इंटू मास ऑफ अर्थ है आपका 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है, ये मास ऑफ आपका हो गया क्या नाम से, अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ है 64 इंटू 10⁻+5 होल स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसको सॉल्व करें तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ये हो गया 300, 2 जीरो हैं तो 3 इंटू 10⁻26 लिख सकते हो इसको, और नीचे हो जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, और इसको लिख सकते हैं 6.67, -11 है, +26 है, ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, -21, -21 ये हो जाएगा, और ये +26, तो 26 में से 21 गया तो 5 बचेगा, तो ये 3/64 इंटू 64 इंटू 10⁻5 ये आ जाएगा, 10⁻5 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 488.7 न्यूटन, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज फोर्स है, लार्ज फोर्स है। इट्स नॉट ए वीक फोर्स, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन लगा रहा है, अब ये देखिए, जिसका मास ज़्यादा होगा वही तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये जो फोर्स लगा रहा है, ये 488.7 न्यूटन, ये फोर्स लगा रहा है कौन, अर्थ। अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है 488.7 न्यूटन से, ठीक है, तो इसलिए ये अर्थ पे ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही रहेगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है इतने अमाउंट ऑफ फोर्स से, इतने न्यूटन फोर्स से, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। अब यदि आप अर्थ और सन के बीच मान लीजिए कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल हो गया इस नोट का, ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ इस नोट 2 का, इसको नोट 2 लिख लेते हैं, और पहले वाले नोट को नोट 1 लिख लेते हैं, ये नोट 1 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट 2 में जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हम लेंगे, सेकंड एग्जांपल इसमें ले लेते हैं अर्थ और सन के बीच का। तो ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, ये सन है। अब मास ऑफ अर्थ तो आपको गिवन है, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते ही हैं,
मास ऑफ सन जो होता है, मास ऑफ सन ये भी गिवन है 1.99 इंटू 10⁻30, 10⁻30 kg, अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू होता है किसका, सन का मास। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d, ये भी गिवन है, कितना है 15 इंटू 10⁻10, 15 इंटू 10⁻10 मीटर। कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, 15 इंटू 10⁻10 मीटर अप्रॉक्सीमेटली ये डिस्टेंस है। तो जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ और सन के बीच निकालोगे तो देखिए क्या आएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर आप देखें तो मास किसका ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा आ रहा है क्या, ये 24 है और ये 30 है, तो डेफिनेटली जो मास है 199 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा आपका 28। तो इसका मास ज़्यादा है, सन का मास ज़्यादा है, अर्थ का मास कम है। सन का मास ज़्यादा है, अर्थ का मास कम है, ठीक है, अर्थ का मास कम है, सन का मास ज़्यादा है। तो सन का मास कितना है, 1.99 इंटू 10⁻30 अप्रॉक्सीमेटली। तो जब इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करोगे इन दोनों के बीच, तो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसमें जब आप वैल्यूज रखोगे, जी का मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना 6 इंटू 10⁻24 और इंटू सन का मास कितना 1.99 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस कितना 15 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो f की जो वैल्यू आएगी वो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1.99 इंटू 10⁻30 और नीचे 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 और 10 का पावर 10 का स्क्वायर करोगे तो 20, ये आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 6.67 इंटू 10 6 ले लेते हैं इसको और इंटू 1.99 और ये देखिए 24 प्लस के 30 प्लस के तो 54 और ये 20 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 31 हो जाएंगे। 54 में से माइनस के 31 गए तो 23, ठीक है, ठीक है, इतना बचेगा। डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 225 और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो f की जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3.541 इंटू 10⁻22 न्यूटन आएगी अप्रॉक्सीमेटली, इतना न्यूटन आती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं ये, ठीक है, इतनी न्यूटन आती है। तो ये भी एक स्ट्रांग फोर्स है, ये वेरी लार्ज फोर्स हो गया, ठीक है, स्ट्रांग फोर्स है, या कह सकते हो वेरी लार्ज फोर्स है, वेरी लार्ज फोर्स है, ठीक है। तो इसलिए सन के चारों तरफ अर्थ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, सन के चारों तरफ अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है क्योंकि इतना लार्ज फोर्स लगा रहा है सन अर्थ पर, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जिसकी साइज ऑर्डिनरी है, स्मॉल है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी साइज इज वेरी स्मॉल, ऑर्डिनरी साइज के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल होता है, जबकि लार्ज होगा कब, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मास एज के होंगे। तो ये कंक्लूजन हमारा ड्रॉ हुआ। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन द ग्रेविटेशनल फोर्स is the gravitational force is very small between objects of ordinary size, ordinary size मतलब लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन द ग्रेविटेशनल फोर्स
is very large between objects of large masses, ठीक है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ हुआ। तो ये हमने डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखा मास पर, डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखा डिस्टेंस पर, ठीक है। इसके अलावा यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस भी ज़रा जान लें। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हालांकि इतना जो डिस्कशन हुआ है उससे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पोर्टेंस पता लग गया होगा। नंबर वन आप कह सकते हो कि इट वाइंड्स अस टू द अर्थ, ये हमें अर्थ से बांधे रखता है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम अर्थ पर नहीं टिक पाते, ठीक है। जैसे कि मून सरफेस पर हम थोड़ा सा मून सरफेस को टच करने के लिए अपना वजन बढ़ाते हैं, वैसे ही अर्थ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा है, मून पर कम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर का स्ट्रॉन्ग है मून के कंपैरिजन में, तो ये अर्थ पर हमें बांधे रखता है, अर्थ पर बनाए रखता है। और मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो मोशन है मून का, वो भी इसी के कारण है। या फिर हम कहें मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स का मोशन, ये भी हमने डिस्कस किया। और जो टाइड्स आते हैं, द टाइड्स, हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, ठीक है। द टाइड्स ड्यू टू द मोशन ड्यू टू द मून एंड द सन, मून और सन के कारण जो लो टाइड और हाई टाइड आते हैं, ठीक है। लो टाइड एंड हाई टाइड जो आते हैं, वाटर सी का वाटर लेवल बढ़ जाना, हाई टाइड, सी का वाटर लेवल कम हो जाना, लो टाइड। तो ये जो टाइड्स आते हैं मून और सन की वजह से, ये इसके पीछे भी मून और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। अब यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें कि क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो देखिए न्यूटन्स लॉ जो इम्पोर्टेंस है वही एक तरह से एप्लीकेशंस भी हैं। देखिए न्यूटन्स लॉ जो ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इसकी हेल्प से हम मासेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस भी हम अलग से लिख लें, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या एप्लीकेशन है। देखिए मास कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कर सकते हो एस्टीमेट का मतलब होता है बेटा कैलकुलेट करना है, एस्टीमेट द मास या मासेज ऑफ बाइनरी स्टार्स प्लैनेट्स का मास कैलकुलेट कर सकते हो आप। एस्टिमेट का मतलब कैलकुलेट करना होता है। आप बाइनरी स्टार तो आप जानते हो, सिस्टम ऑफ टू स्टार्स ऑर्बिटिंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिस्टम ऑफ टू स्टार्स, वाई मतलब टू, ठीक है। सिस्टम ऑफ टू स्टार्स को हम बाइनरी स्टार्स कहते हैं, जो कि कॉमन सेंटर ऑफ मास पर ऑर्बिट कर रहे हैं, किसी कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जिनका सेंटर ऑफ मास कॉमन है। ऐसे स्टार्स, दो स्टार्स को, ग्रुप ऑफ टू स्टार्स को बाइनरी स्टार्स कहते हैं, उनका मासेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मोशन ऑफ ए स्टार जो है उसको हमें एक्सप्लेन
पता कर सकते हैं कि कैसे मूव करेगा। मोशन ऑफ ए स्टार, ठीक है, मोशन ऑफ ए स्टार, मोशन ऑफ ए स्टार जिसको आप क्या नाम देते हो, वॉवल, क्या नाम देते हैं, वॉवल। इसे हम क्या कह सकते हैं, कोई भी मोशन कैसी होगी किसी स्टार की वो हम पता कर सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, जिसे हम बॉवल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिपेंडेंस के बारे में जाना, इम्पोर्टेंस के बारे में जाना और एप्लीकेशंस के बारे में जाना। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके अलावा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ये कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।